So today we are going to talk about evaluation of definite integrals by substitution. Correct? So till now we have understood definite integral in the form of limit as a sum, fundamental theorems of definite integrals, correct? Integrals of calculus. But when we talk about method of substitution, immediately you'll recall something what we did in indefinite integral, correct? So how are we going to evaluate definite integral by substitution? So there are two methods to do, two different approaches of doing those kind of a problem. Let me help you to understand with one example, and let me take example number 28. What do we have? Evaluate integral minus 1 to 1 5 x raised to 4 into square root of x raised to 5 plus 1 dx. Now how are we going to do this? So let me show you two method. Method number 1 first हम बात करेंगे. Now in method number 1 what are you supposed to do is कि whatever the integral we have, consider it as a indefinite integral. That means I can write this as minus, instead of minus 1 to 1 I can just simply write this as integral phi x raised to 4 into square root of x raised to 5 plus 1. Correct? Whatever the definite integral we have, consider that as an indefinite integral. When you consider as indefinite integral, limit will not be there. Correct? Now limit went away. अब क्या करो, इस पूरे प्रॉब्लम को इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू? सो व्हाट आई एम गोइंग टू लेट x raised to 5 plus 1 equals to t. That means 5x raised to 4 dx equals to dt. So my this integral will become what it will become. 5x raised to 4 dx will become dt, and this is root t dt. Correct? When you do something like this, जब हमने definite से indefinite में convert किया, then we have to convert this variable into the original variable. हमारा जो नया variable t आया है उसे हमें वापस से original variable में convert करना पड़ेगा. And to do that what I can do is integral t की जगह पे क्या रख देंगे? Square root of x raised to 5 plus 1. What we will do? We will substitute the value of x raised to 5 plus 1. अब dt की जगह पे क्या करेंगे? Correct? So what are we supposed to do? पहले ही नहीं करेंगे इसे, एक काम करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेट कर देते हैं. Correct? And if I integrate this, so it will become t raised to 3 by 2, I guess, isn't it? 1 by 2 plus 1, 3 by 2 divided by 3 by 2. अब आप सिंपली t की वैल्यू रिप्लेस करो तो it will become 2 by 3. t जो है वो x raised to 5 plus 1 raised to 3 by 2. This is method 1. Now how can we solve with method number 2? है ना? तो in this particular what we did, we considered from definite to indefinite, we'll substitute it, simplified it, integrated, and then back substitution. Now if you want you can do it this in a quick manner. How we are supposed to do? To keep this integral in definite form only, minus 1 to 1 and x raised to 5 plus 1 dx. Correct? I kept it in definite integral form only, है ना? जैसा है वैसा ही रखा, simple. And again I will let something like this कि भाई let x raised to 5 plus 1 equals to t. That means 5x raised to 4 dx equals to dt. But when I do something like this substitution, what am I supposed to do is I am supposed to change the limit as well, because now your function is converted into a new variable, so your limit also changes into the new variables. Correct? So क्या करेंगे? When x tends to minus 1, because x की वैल्यू ही होगी ये minus 1 से 1, है ना? और let me say when x equals to minus 1, we'll say when x equals to minus 1 t equals to, तो let me put minus 1 over here. minus 1 का power 5 यानी कि odd है, that means minus 1 plus 1 0. And then when I take x equals to 1, so 1 plus 1 2. So this changes my limit.
So what it becomes? Now it becomes I equals to integral 0 to 2 phi x raised to 4 की जगह dt and this becomes square root of t dt. इंटीग्रल तो सेम ही होगा, क्या होगा? t raised to 3/2 divided by 3/2, ये हो जाएगा 2/3. बट नाउ वी आर सपोज टू पुट द लिमिट, सॉरी यहाँ पे भी लिखेंगे 0 से 2. वी स्टार्ट पुटिंग द लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to 3/2 minus 0 raised to 3/2, but that doesn't matter, so it becomes 2/3. Now 2 raised to 3/2 कितना होता है? तो it is bit difficult to identify, but फिर भी आप सोचोगे 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर रूट यानी कि 2√2 and 2 2 जा 4√2/3. बट यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे ये आया. एक चीज यहाँ पे हमारी बाकी है, वो क्या है? तो कि यहाँ पे हमें ये x के फॉर्म में मिल गया, वो तो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर था ना, बट हमें तो क्या फाइंड करना है? डेफिनेट इंटीग्रल. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इतनी सी जगह हमारे लिए यहाँ से क्रिएट करते हैं टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जस्ट सिंपली अब ये ध्यान रखो कि हमें इसे लिमिट में पुट करना है. क्या करना है? सिंपली इसे लिमिट में पुट करना है, बिकॉज आपकी लिमिट -1 से 1 है. सो अगर मुझे इसे लिमिट में पुट करना है तो मैंने i लिखा. लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस के इंटीग्रल -1 to 1 phi x raised to 4 square root of x raised to 5 plus 1 dx is equals to 2/3 कांस्टेंट बाहर x raised to 5 plus 1 raised to 3/2 और लिमिट है -1 से 1. नाउ पुट द लिमिट. क्या लिमिट पुट करोगे? तो पहले 1, तो 1 plus 1 2, 2 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट -1 plus 1 0, तो यही हो गया ना. देखो सेम थिंग. सो यू गॉट अगेन 4√2/3. So you can either do by this method or this method. I know कि हमने somehow little bit at one point ये method का थोड़ा बहुत use किया हुआ है, but still its title is this something like this कि evaluation of definite integral by substitution. So you can solve either by this method or this method, whichever you prefer better for you. If you take my opinion, this is much better compared to this one, because this becomes much lengthier as compared to this, because what you have to do, you have to convert into indefinite, then substitute, then integral the whole problem, then back substitute, and then go for the definite integral and substitute the limits. यहाँ पे सीधे सीधा substitute किया, limit change, simply integrate in that variable and substitute the limit, बात खत्म. Are you getting? So this is how this particular method problems are supposed to be solved. Correct? You can pause the video and note it down. Now let's go for exercise 7.10 and let me go for question number 2, because first is very easy, so I guess you people can do. In question number 2, it is given integral 0 to pi/2 square root of sine phi into cos raised to phi d phi. अब यहाँ पे पूरा जो फंक्शन है in the form of phi है. Correct? Now what are we supposed to do? So पहला तो सबसे पहले इसको I बोल देंगे, then let. But what we will let? But before I let something, let me do something like this. Integral 0 से pi/4 square root of sine phi. This can be written as cos raised to 4 phi into cos phi d phi. Why I did this? Because I already get to know कि भाई मुझे substitute करना है sin phi equals to t. Because that will help me to solve the problem in a easy way. But फिर ये हमारे लिए दिक्कत करेगा, तो sin phi का डेरिवेटिव तो cos phi ही होगा, तो ये यूटिलाइज हो जाएगा. बट हाउ वी विल सॉल्व दिस वन? तो इसके लिए हमने cos raised to 5 को ऐसे स्प्लिट किया. नाउ cos raised to 4 that can be written as 1 minus sin square phi का whole square into cos phi d phi. Now let sin phi equals to t, so cos phi d phi is equals to dt. Correct? And I am going with the changing the limit. So when phi is equals to 0, t equals to, so consider this phi 0, so sin 0
0, then phi equals to pi by 2, तो t equals to 1 because sin pi by 2 is 1. करेक्ट. तो अब हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया 0 to 1. नाउ व्हेन यू डू चेंजिंग लाइक दिस ना, यू आर नॉट सपोज टू राइट इनटू टू वेरिएबल्स, कीप इट इन द वन वेरिएबल. 0 to 1 sin phi हो जाएगा t, so square root of t, this will become 1 minus t square का whole square into dt. Still you may be feeling like कि अरे ये तो इतना डिफिकल्ट है, कैसे अभी भी होगा. तो अब डिफिकल्ट नहीं रहा, इट इज सिंपल फॉर्म. बट कैसे करेंगे, तो कि t raised to 1 by 2 1 minus 2t square plus t raised to 4 dt and simply give this inside. आपने आगे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं इंटीग्रल 0 से 1, so it will become t raised to 1 by 2 minus 2t square into 1 by 2, तो 2 to the 4 plus 1 5 by 2 plus t raised to 4 plus 1 by 2, तो 4 to the 8 plus 1 9 by 2 dt. Now we know how to integrate this. कैसे होगा, t raised to 3 by 2 upon 3 by 2 minus 2 times t raised to 7 by 2 upon 7 by 2 plus t raised to 11 by 2 upon 11 by 2 integral 0 से 1. Correct. So it becomes 2 by 3. Now if I start putting the upper limit first, तो 1 रखना है, तो ये simply 1 ही आएगा. Minus 2 to the 4 by 7 into 1 plus 2 by 11 into 1. ये upper limit हुई. Minus lower limit. If you look at the lower limit ना, t की जगह 0 put करना है, तो all this will become 0. So 0 minus 0 plus 0. तो ये तो हट ही गया, यही जो है बचा है. क्या है वहां पे, 2 by 3 minus 4 by 7 plus 2 by 11. Can you simplify this and get the answer for yourself? Definitely, है ना. अब अगर LCM लेके प्लस और माइनस करने आपको नहीं आएगा, तो it will create a difficulty for us. So I am not going to do for that right now. For you right now, I am going to left it for you people to finish it at your home. तो basic idea what we are trying to understand here is that this is how we are supposed to solve with the help of a method of substitution. Correct. So ये method of substitution है indefinite integral. Indefinite नहीं, indefinite, है ना. I know कि थोड़ा सा confusing हो जाता है. Correct. So ध्यान रखेंगे कि this is how we are going to solve definite integral by substitution method. Correct. So there is no in और definite कुछ separate करने की जरूरत नहीं है. डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. I equals to इंटीग्रल 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. So again you can do by both the methods. If you want, you can just convert this into indefinite integral and then we know how to do. Correct. Or you can substitute it, change the limit and then proceed in the same manner. So कैसे करेंगे, तो simply I have to let x equals to tan theta. It's very important क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta will give us the formula of sin 2 theta. So x की वैल्यू tan theta ली, तो dx will become tan theta की जगह पे sec square theta d theta. करेक्ट. फिर हम लिमिट चेंज करेंगे, तो क्या भाई व्हेन x is equals to 0 थीटा इज, क्यों थीटा, तो कि वेरिएबल थीटा है ना, वेरिएबल tan थीटा नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू से कि x 0 है तो tan थीटा 0, ऐसा नहीं. थीटा फाइंड करेंगे, थीटा विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल. सो x की वैल्यू 0 तो tan थीटा 0. अब tan 0 कब आता है, 0 पे ही आता है. चलो वेरी गुड. देन x इक्वल्स टू 1, तो tan की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4 पे. तो ये इंटीग्रल पूरा चेंज होके कन्वर्ट हो गया 0 से पाई बाय 4. इसमें आप x की जगह पे रिप्लेस कर दोगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा. सो दिस बिकम्स 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. और ये बच जाएगा आपका सिंपली 0 से पाई बाय 4, 2 बाहर, थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा. नाउ बाय विच मेथड वी कैन प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर, डेफिनेटली बाय
पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली मेथड से हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे, तो क्या समथिंग लाइक दिस 2 ऐसे, लेट मी राइट इन द ब्रैकेट थीटा इंटीग्रल 0 to π/4। अब ना यहाँ पे मैं कुछ इस यूनिक वे में लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। वापस sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और 0 से π/4 माइनस इंटीग्रल 0 से π/4 d/dx ऑफ थीटा, करेक्ट, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू डी थीटा, और ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आर यू गेटिंग? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तो आप थीटा बाहर रखोगे और इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा करोगे, एंड व्हेन यू डू दैट ना, तो आप लिमिट सिर्फ इसे ही दोगे, दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू गिव लिमिट टू दिस पर्टिकुलर थीटा एज वेल। इसीलिए मैंने क्या किया, इन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिख के इस तरह से लिखा माइनस इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल सॉल्व होगा, डी थीटा सॉल्व, डी एक्स नहीं आएगा, सॉरी, डी थीटा सॉल्व हो जाएगा, तो जो टर्म मिलेगा उसका इंटीग्रल करोगे, फिर उसमें लिमिट रखोगे। सो यहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, दिस इज हाउ यू शुड बी कंटेनिंग योर प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर वे, करेक्ट। चलो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, tan थीटा, सो इट बिकम्स थीटा tan थीटा और लिमिट 0 से π/4 माइनस इंटीग्रल 0 to π/4, इसका डेरिवेटिव 1, इसका tan थीटा, सो ये हो गया सिंपली tan थीटा डी थीटा, करेक्ट। यहाँ पे लिमिट रखनी स्टार्ट कर दो, तो π/4 tan π/4 1 माइनस 0, बाद यहीं पे खत्म, माइनस। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ tan थीटा, तो हमें सबको पता है कि इसका इंटीग्रल आता है log मॉड्यूलस में sec थीटा, और इसकी लिमिट भी 0 से π/4, करेक्ट। सो 2 टाइम्स π/4 माइनस, अब इसमें लिमिट रखो, तो क्या log मॉड्यूलस ऑफ sec π/4 माइनस log मॉड्यूलस में sec 0, तो it will become 2 times π/4 minus what is sec π/4, sec π/4 यानी cos, यानी कि √2, so this will become log √2 minus log 1, और log 1 तो ऐसे भी 0 ही होता है, तो हमारा आंसर आएगा 2 times π/4 माइनस log √2। अब आप चाहो तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करो सब चलेगा। अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम π/2 माइनस 2 टाइम्स log √2। ये आपके इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल का, करेक्ट। आर यू गेटिंग द आइडिया किस तरह से हम यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, आप इसे चाहो तो पावर में ले लो, क्योंकि हमें पता है log में ऊपर लिया जाता है। अब √2 है और √2 का पावर स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, तो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस आंसर एज π/2 माइनस log 2 एज वेल। देखो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने यहाँ पे खत्म किया या यहाँ पे, दैट्स ओके, बट या डेफिनेटली व्हेन वी डू समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे तो बाकी कोई मेथड अप्लाई नहीं हो सकती। देखो, वंस वी सब्स्टिट्यूट वी हैव टू गो फॉर मेथड मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, मेथड ऑफ नहीं बोलना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, करेक्ट। सो देयर मे बी चांसेस के व्हेन यू डू सब्स्टिट्यूट इट विल बी कन्वर्ट इन सच अ वे दैट यू नीड टू यूज सम अनदर फॉर्मूला, यू नीड टू जस्ट सिंपली पुट द फॉर्मूला, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग के किस तरह की सिचुएशन है, करेक्ट। सो आई गेस समझ में आ रहा होगा आपको। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। I equals to integral 0 to 2 x into square root of x plus 2 dx. Now how are we supposed to this kind of question when this both looks in the same way, है ना, दोनों का पावर भी सेम है। अदरवाइज what हम क्या कर सकते थे कि कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो कि भाई बाहर वाला आंसर हमें इन समहाउ मिल जाता, करेक्ट। तो when you see something like this, first of all think in this way कि let me remove square root, और square root remove करने के लिए हम क्या करेंगे, तो let me
सब्सटीट्यूट x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी कि dx इक्वल्स टू 2t dt, dx इक्वल्स टू 2t dt एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t कितना होगा, तो पे अटेंशन फॉर t नॉट t स्क्वायर, t कितना होगा, तो 0 प्लस 2 2, तो t स्क्वायर है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि भाई प्लस ही क्यों लिया माइनस क्यों नहीं लिया, तो कि ये आपका इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है ना 0 से 2 में, सो दैट इज वाई +2 एंड व्हेन यू टेक √2 एंड व्हेन यू टेक 2 तो 2 + 2 4, तो अगेन t इक्वल्स टू 2 है ना। सो सिंपल सा हमारा इंटीग्रल जो है वो कहां से कहां चला गया, √2 से 2 पे, और ध्यान से पेशेंस है ना, ये t स्क्वायर रखोगे तो t हो जाएगा, dx की जगह पे भी 2t dt आएगा, और x की जगह पे क्या आएगा, तो इट विल बिकम t स्क्वायर माइनस 2, क्या हो गया x की जगह पे t स्क्वायर माइनस 2, तो ये √2 ये 2, ये दो 2 है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t⁴ माइनस टी स्क्वायर dt। बोलो कितना इजी हो गया प्रॉब्लम। अब सिंपल सा काम क्या करना है, इंटीग्रेट, यानी कि t⁵/5 माइनस t³ 3, इंटीग्रल लिमिट है √2 से +2, करेक्ट। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या पहले अपर लिमिट रखेंगे, कैसे, तो क्या 2 बाहर रखो, अपर लिमिट के लिए करली ब्रैकेट, t की वैल्यू 2, सो 2⁵/5 माइनस 2⁵3/3 माइनस लोअर लिमिट जो √2 है, तो √2⁵/5 माइनस √2⁵3/3। अब इसे करना है आपको सिंप्लीफाई, करेक्ट। तो पहले ये सोचो 2⁵5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, करेक्ट, ऐसे गिनने नहीं चाहिए बट स्टिल 32/5 माइनस 8/3 माइनस, अब √2 का पावर 5, तो √2 इंटू √2 2, अगेन √2 करोगे 2√2, अगेन √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और ये हो जाएगा 4√2/5 एंड माइनस माइनस प्लस 2√2/3। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है टू गेट टू द फाइनल आंसर। कैसे करेंगे, तो क्या एलसीएम 15 5 और 3 है डेफिनेटली, सो 2 एलसीएम 15 या 5 है 3 से करना पड़ेगा, तो 3 2 6 3 3 9, 5 से 8 5 40, 3 से 4 3 12√2 प्लस 5 से तो 5 2 10√2, 96 में से 40 गए तो 56, और ये माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 15, कुछ कॉमन निकल सकता है। कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन आउट ऑफ इट, 5 2 10, oh wait, this is 2, एक मिनट, छोटी थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे ये 10 नहीं आएगा, और थोड़ी सी मिस्टेक्स ऐड करेंगे, 2t³ है तो इसका क्यूब क्या इंटू 2, और यहाँ पे भी 2, सो यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा 2⁴, तो वो होगा 16, और 16 5 80, यहाँ पे 2 2 4√2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20, और ये बचेगा +8, करेक्ट, और यहाँ पे बचेगा 16, 96 माइनस 8 या 16, करेक्ट, ये +8 आएगा, सो 2 टाइम्स, इसमें से भी आप 8 कॉमन निकाल सकते हो आई गेस, है ना, वी कैन इजीली टेक 8 कॉमन, तो 8 2 16 बाहर, ये बचा 2 प्लस √2/15, एंड इवन इफ यू वांट यू कैन टेक √2 आल्सो कॉमन, सो इट बिकम्स 16√2/15 into square root of 2 plus 1. This will be our final answer. देखो
स्टेप्स यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे कोई एक्स नहीं है, टी नहीं है, थीटा नहीं है, कुछ नहीं। ऑल द थिंग्स वी हैव डन हियर इज द सिंप्लीफिकेशन। बस वो सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं थी, मिस्टेक थी जो यहाँ पे ये 2 जो है वो हमने लिखना रह गया। यहाँ पे हमने सीधा क्या किया, टी इंटू टी, टी स्क्वायर टी रेज टू 4 और टी स्क्वायर लिख दिया, दैट इज 2t स्क्वायर। ये 2 तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया था, तो उसमें कोई इश्यू था नहीं। सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। Am I clear? You can pause the video and note it down. Now let's go for question number 6. क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x square. Now how are we supposed to solve this particular one? तो if I recall properly, तो ऐसा हमने कुछ स्टैंडर्ड सॉल्व किया है, isn't it? If you remember dx upon ax square plus bx plus c, है ना? कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इन द सेंस बाय टेकिंग नेगेटिव कॉमन, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 0 to 2 dx। अब एक काम करते हैं, -1 बाहर ही ले लेते हैं, बिकॉज इट सिंपल नेगेटिव तो अंदर रखने का कोई मतलब नहीं। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो परफेक्ट स्क्वायर सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मिडल टर्म जो है वो माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2x, एक्स एक्स कट a इक्वल्स टू -1/2, करेक्ट। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो +1/4 और -1/4, तो ये प्लस और ये -1/4, इस तरह से हमने दे दिया, करेक्ट। माइनस इंटीग्रल 0 to 2 dx and this becomes x minus 1/2 का स्क्वायर। What will be this? 4 4s are 16, -1 minus 16 minus 17/4। अरे गेटिंग इट, एकदम सिंपल है। अब आप चाहो तो ये माइनस अंदर दे दो या फिर यहीं से फिनिश करके माइनस बाहर रहने दो, बट करेंगे क्या, तो सिंपली लेट x minus 1/2 इक्वल्स टू t। x की वैल्यू हो जाएगी dx और ये हो जाएगा dt, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो t कितना होगा, x 0 तो t minus 1/2, और जब x 2 है तो t की वैल्यू 2 होगी, तो 2 2 4 4 minus 1 3/2, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट भी चेंज कर ली, तो लिमिट चेंज करके कितना आ रहा है, माइनस इंटीग्रल -1/2 से 3/2, क्योंकि 0 नीचे है, लोअर लिमिट है, तो उसका -1/2, dx की जगह पे dt डिवाइड में t स्क्वायर माइनस 17/4। अभी भी आप चाहो तो माइनस अंदर दे दो, तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो लेट मी गिव दिस चलो नहीं देना, लेट्स सी कि हमें चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है ना, करेक्ट। अब बाकी जगह देखोगे तो आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मिलेगा, फिलहाल हम एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के हिसाब से ही करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो के 1/2 टाइम्स a इंटू लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। अब इसमें प्लस c नहीं आएगा, है ना, आदत हो जाती है इनडेफिनेट करते करते, तो रहेगा थोड़ा, ये -1/2 से लेके 3/2, माइनस बाहर, ये दोनों कट, 1/√70 इंटू लॉग। पहले अंदर छोटा सा सिंप्लीफिकेशन विच इज 2t माइनस √17 अपॉन 2t प्लस √17। अब रख देंगे हम हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/√17 आउटसाइड कर्ली ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट लॉग मॉड्यूलस, t की जगह पे 3/2 रखेंगे, 2 2 कट होके क्या हो जाएगा, 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17 माइनस लोअर लिमिट, अगेन t की जगह -1/2 रखेंगे, तो 2 2 कट होके -1 माइनस √17 डिवाइडेड बाय -1 प्लस √17, करेक्ट। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत है ही नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सीधे सीधा कर दिया हमने, करेक्ट। अब डिफिकल्टी यहाँ पे ये है कि इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हाउ आर वी सपोज टू सिंप्लीफाई दिस बिगर टर्म, तो -√1/17 लॉग, सब्ट्रैक्शन में है यानी डिवाइड में जाएगा, 3 माइनस √17
डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 17, डिवाइड में जाएगा तो ये वाली टर्म नीचे आएगी -1 माइनस रूट 17 और -1 प्लस रूट 17, कुछ इस तरह से बना। अब करना क्या पड़ेगा पता है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं ये बाकी सब रफ कर देता हूं बिकॉज इसी का सिंप्लीफिकेशन ही हमें और ये पेज भरवा देगा दिस साइड। क्यों? तो जस्ट थिंक ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा। चलो पहले मल्टीप्लाई वाला सिंपल स्टेप करते हैं, फिर रैशनलाइज भी कर देंगे। करेक्ट? तो log 3 वन जा -3, 3 रूट 17 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 17 और -17 डिवाइडेड बाई अगेन -3 -3 रूट 17 माइनस रूट 17, तो -4 रूट 17 -17। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो आगे की वैल्यू लिखनी है डेफिनेटली -1 बाई रूट 17 लॉग मॉड्यूलस -17 -3 -20 प्लस 4 रूट 17 और नीचे भी -20 लेकिन -4 रूट 17। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे -20 प्लस 4 रूट 17 और -20 प्लस 4, यानी कि हमने किया उसको रैशनलाइज। करेक्ट? लॉग ऊपर देखोगे तो स्क्वायर है, सो -20 प्लस 4 रूट 17 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये 17। कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है बट वी शुड डू इट डेफिनेटली। सो ऊपर भी करेंगे तो क्या होगा 400। नाउ एक्चुअली दिस इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि 160 रूट 17 प्लस क्या आएगा, नहीं ये माइनस होगा, प्लस अगेन 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 16 और 17 कितना होता है 0 7 1 42 4 6 4 10 2 7 2 272। वैसे ऊपर भी 272 ही आने वाला है बट डोंट वरी। सो -1 बाई रूट 17 लॉग मॉड्यूलस। अब 400 प्लस 272 तो 4 5 6 672 माइनस 160 बाई रूट 17 और नीचे 400 माइनस रूट 272 तो 128। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है कि कितना कॉमन निकल के कट हो सकता है ना। तो पहले ऊपर से 2 निकलेगा, जस्ट चेक करते हैं। अगर 2 निकला तो ये कितना हो जाएगा 336, उसमें से भी 2 निकाल दोगे ये 80 हो जाएगा, डोंट वरी। 160 का 80, 336 का से भी 2 निकाल दोगे तो 168 और 40। 168 में से भी 2 निकाल दोगे तो 84 और ये 20, और 84 में से 2 निकाल दोगे तो 42 और 10। लेकिन ये कितनी बार हुआ 4 बार, तो 128 का भी तो सोचो। 128 का आधा 66, नहीं 66 कहां से होगा 64 का आधा 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8, और भी जा सकते हो। हाँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 4। अब नहीं कर सकते। सो बेसिकली बचा कितना पता है, सब कॉमन निकाल के वी लेफ्ट विथ 21 माइनस 5 रूट 17 बाई 4। ये देखो मैंने ये सारी चीजें कॉमन निकाल के एक ही बार में खत्म कर दी। अब आप बार बार कट करके स्टेप्स बढ़ाते जाओगे तो वो आपका प्रॉब्लम है। एंड अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ये आंसर नहीं दिखेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। क्यों नहीं दिखेगा, तो कि इतना ज्यादा कोई फर्क है नहीं। हमने यहाँ पे जो ये बाहर माइनस निकाला है ना, वो माइनस की वजह से हमें यहाँ पे ये चेंजेस दिख रहा है। करेक्ट? तो होगा क्या कि भाई सपोज आपने ये माइनस नहीं निकाला होता तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है 21 प्लस 5 रूट 17।
बट हमने बाहर निकाला, अब आप इसको अंदर दोगे इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो 1/21 प्लस माइनस 5√17 वापस रैशनलाइज करोगे, somehow you will get to the answer 21 plus 5√17/4. Don't worry, for me this is, for me नहीं, for everyone this is correct answer. There should not be any kind of difficulty to understand कि हाँ ये भी सही है, करेक्ट। ये भी नहीं बोलेंगे, ये सही ही है, करेक्ट। सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मैं कह रहा हूं, आप जैसे ये माइनस अंदर दोगे ना तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे लिखा हुआ आंसर आपको मिल जाएगा, बट नहीं देना है, डोंट वरी। इंटीग्रल का सी when we say कि definite integral has a unique answer, yes it has, but there are some another functions also which we are involving in it, and when we are involving some another function there may be chances कि आपको प्लस और माइनस में कुछ अलग मिले, and rearranging it you will get the same answer, but यहाँ पे मुझे rearrange करने की कोई जरूरत दिख रही नहीं है। So I can easily say कि ये सही आंसर है। अगर आपने ये माइनस यहाँ से अंदर दिया होता तो होल सिचुएशन विल गेट चेंज। क्यों? क्योंकि आपका a² माइनस x² हो जाता। फॉर्मूला में 1/2a log a plus x upon a minus x and all those things can be carried out in the same manner and you will get just simply plus here। बाकी सब पूरे स्टेप सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आर यू गेटिंग मी? और ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहे हो तो -20 प्लस 4√17 है, सीधी सी बात है ना। तो आपको ऐसे फील हो तो 4√17 माइनस 20 लिखो, एंड व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन, मिडिल टर्म नेगेटिव आता है, नॉट पॉजिटिव, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज टोटली करेक्ट आंसर। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं और उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स काफी लेंथी हो रहे हैं, करेक्ट। सो इफ आई वांट टू चेक योर नॉलेज कि भाई आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आता है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल आता है, आपको ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आते हैं, तो आई कैन आस्क समथिंग लाइक दिस सो दैट आई कैन चेक एट अ टाइम 3 कंसेप्ट्स। एक ही क्वेश्चन में मेरे 3 कंसेप्ट चेक हो जाएंगे, है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने सब्स्टिट्यूट करा, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम, ये लिमिट पुट करके इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, और थर्ड ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स dx upon x² minus a²। That's a good enough amount of things I can verify with only one question, and that is why ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए 4 मार्क में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Am I clear?